नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की आज सहरसा जेल से रिहाई हो गई। आनंद मोहन को आज तड़के सहरसा जेल से छोड़ दिया गया। प्रशासन ने सुबह सुबह रिहाई का फैसला किसी तरह के हंगामे से बचने के लिए किया, यह साफ तौर पर नजर आया। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वो पेरोल पर थे। उनके बेटे की सगाई थी जिसमें बिहार के बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहे, और जब आनंद मोहन की रिहाई हुई तब बड़ी तादाद में उनके समर्थक वहां पर आए। उनका स्वागत एक तरह से किया गया और इस तरह से उनकी जो रिहाई है वो हुई है। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो उनके बेटे की सगाई में बड़े बड़े नेता नजर आए थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन ये सवाल लगातार बना हुआ है कि एक अफसर की दिन दहाड़े हत्या करने वाले मुजरिम को इस तरह रिहा करने को लेकर क्या संदेश जाएगा? क्या ये बाहुबली के आगे राजनीति के सरेंडर की मिसाल नहीं है? तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं यहाँ पर, और हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं किस तरह की रिहाई से आखिर क्या संदेश जाएगा, उनके परिवार पर क्या कुछ बीत रही होगी। तो हम यहाँ पर पद्मा कृष्णैया जो कि आनंद मोहन को लेकर बातचीत कर रही हैं, और कृष्णैया की बेटी हैं जो जिला अधिकारी होते थे, उनकी क्या पहली प्रतिक्रिया आई है वो बातचीत आपको सुनवाते हैं हमारे सहयोगी उमा सुधीर के साथ। I'm here with the daughter of Mr. G. Krishnaiah. This is a younger daughter, in fact. Padma was only 4 when the incident happened. Her sister Niharika was in fact 6 years old. Her mother told us in fact that even though they were very, very young, the trauma of it was something that they have lived with for so many years. Now hearing about Anand Mohan's release, and today he is to be out of jail. Well, it's very disheartening to know this, that he was out of the jail today. We were hoping that the life imprisonment would continue. There was kind of solace to us back in 2007 when the case had come out due to IAS Officers Association effort that they had put in. Even then it actually took 13 years for the death sentence first in 2007, and then that became a life sentence in 2008. Yeah. Yes. And then after that we were in the thought that the life imprisonment would continue. And back then I think after when Nitish Kumar became the Chief Minister of Bihar, he had told that people like Anand Mohan should not be encouraged and they should be given life imprisonment. I don't know why Nitish Kumar ji had to change his decision about this, and this was definitely not expected of the Chief Minister of Bihar. Whoever is in support of this to get him out is definitely not fair, and it's very unjust to us. Your mother on that day said that she believes it was political, vote bank politics that played a role in Mr. Anand Mohan coming out of jail, being set free. Definitely. I mean, other than that, I think there's no other motive for Nitish ji to get Anand Mohan out. Apart from that, what other motive could it be? And today they're saying that 14 years is something that he had spent, and he's been a very good person when he was in jail. And that is also qualifying for one of the reasons that he should be out and should be walking freely on the streets. This is something that we will never agree with. And the majority of people, I think there are a very few section of people who are supporting Anand Mohan in Bihar, but a lot of people are coming and speaking to us, and I'm hoping that a larger section of people in Bihar are with us, and something really works out in favor of us and not in the favor of family of Anand Mohan. This is not about just your family. Your father was someone who represented the Indian nation, the sovereign India. And in fact, the IAS Officers Association has said that this is in fact an open challenge to the Constitution, because he was an All India Service Officer serving in the name of the government. Absolutely. Well, to be very honest, I was hardly like 4.5 years old when my father had passed away, and life from then till now it's been very difficult for us. I and my sister used to go to school with the thought that we were so scared that somebody would come and do something to us. And until today also we have the same feeling. There's no security, but we just are living like this. And I hardly have any memories with my dad, because my dad only worked for the people.
He has always studied in government institutions with scholarship. So he always thought that the scholarships or everything that he was getting is only because people are providing it. And he wanted to give it back to the people. Even in the final moments of his death, I'm pretty sure the driver, Deepak Kumarji, had the capacity to drive through and take my dad away from there. And even if my father would have thought, he could have escaped. But even in the dying moments, he thought that he should protect the bodyguard who was attacked first. And he didn't care about, his family, his daughter. So that's the kind of person my father was, and it's a loss to Bihar that they have lost an IAS officer like him. If he was still alive, I'm pretty sure there could have been many changes in Bihar by now. Have any political leaders reached out to you after this incident has happened? I know that the IAS Officers Association has been constantly in touch with your mother, and they have also said that they will consider legal action if Mr. Nitish Kumar does not listen to the appeals from you and your mother. Biswanji had just contacted me, and Chirag Paswan had called you. Chirag Paswanji had contacted me today, and they were saying that a very few section of people in Bihar are fighting for this. So, he was the first person who contacted us. So we feel very grateful about it that there are people out there in politics as well who are coming in support to help us. And we will work towards it, and we are also thinking of approaching to the Prime Minister about this. I would actually say you could appeal directly to the Prime Minister, President, like your mother was saying, what you would like to see in this case, because one, you lost your father, your mother was hardly 33, they had a love marriage, they were hoping to have a better life once your father joins the services, and they both wanted to serve the country. Well, I would request PM Narendra Modi ji, firstly, a very big namaskar to you, sir. You're getting emotional. Yes. Our struggle, sir, has been, there are no words that I can express about it. Not about us, but my mother. I'm 35 now, so I can relate to how much my mother would have gone through at that point of time. She was hardly 33. मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में नहीं आना चाहिए सर। हम बहुत ही ज़्यादा, हमें इतना पावर नहीं है कि हम फाइट कर सकते हैं, मगर हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने और ऐसे क्रिमिनल्स को एक ऐसा लॉ लेके आए जहाँ पे ये गैंगस्टर, ये जो माफिया, ये जो चल रहा है, सारे ऑफिसर्स लोग घर से वहाँ घूम सके, बिहार में सेफ या किसी भी स्टेट में। आप रिकंसिडर करें इस सिचुएशन को, और आप एक बार, अगर आपको हमारे पापा जी के बारे में पता नहीं है तो एक बार बिहार जाके वहाँ के लोगों से मिलना, शायद आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना अच्छा सर्विस किया है। आज भी 29 इयर्स के बाद अगर लोग इसको लेके लड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए ये रिवॉर्ड नहीं है सर। तो बस मेरी यही विनती है कि आप सोचें इसके बारे में और हमारी तरफ जस्टिस आए। तो सुना आपने, ये जी कृष्णैया की बेटी हैं पद्मा कृष्णैया, जिनका दर्द वो छुपा नहीं सकी, वो छलका उनकी आंसुओं के जरिए, और वो यही गुहार लगा रही है कहीं ना कहीं कि देखना चाहिए। यहाँ पर वो प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाती हुई नजर आई कि इस मामले को फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पिता की हत्या का जो दोषी है उसको जेल से रिहा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दंतेवाड़ा की, जहां पर हमारे 10 जवानों की शहादत हुई है। तो दंतेवाड़ा नक्सली हमले ने जिस तरह से कई सवाल उठा दिए हमारे जवानों की शहादत को लेकर, क्योंकि बार बार ये दावे किए जा रहे थे कि नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है, लेकिन जब कल जो हमला हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चूक को लेकर सवाल खड़े किए हैं और खुफिया एजेंसियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता था जिससे इतनी बड़ी शहादत जो है वो हमारे जवानों की नहीं होती। एक ड्राइवर की भी इसमें जान गई है, और आज जब अंतिम संस्कार की तस्वीरें आई तो वो भावुक कर देने वाली हैं, परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि वो जो परिवार, जब उन तक ये खबर पहुंची तो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा और कई परिवारों में मातम छाया हुआ है। तो दंतेवाड़ा नक्सली हमले के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या 10 जवानों की जान बचाई जा सकती थी? क्या प्रोटोकॉल तोड़
कर हुआ था ये मूवमेंट। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान में शामिल होने के बाद 10 जवान एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल से दंतेवाड़ा लौट रहे थे और जब वो अरनपुर और समेली गांव के बीच में थे तभी नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। यहां पर यह जानकारी भी सामने आई कि जिस सड़क पर विस्फोट हुआ वहां पर कई और जिंदा सुरंग थी। सुरक्षा कर्मियों के मूवमेंट के प्रोटोकॉल होते हैं। सर्च ऑपरेशन पर जब जाना होता है तो मुख्य सड़क से न गुजरे ये हिदायत दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि पगडंडियों का इस्तेमाल करें और पैदल चलने की हिदायत भी दी जाती है ताकि अगर किसी तरह का हमला होता है तो ज़्यादा लोग उसकी जद में ना आए। यहाँ पर यह भी हिदायत होती है कि वाहनों में जाएं तो उचित दूरी बनाकर चलें ताकि अगर कोई वाहन है वो अगर किसी विस्फोट की चपेट में आता है तो कम से कम दूसरे वाहन जो हैं वो उसी विस्फोट में ना आए, इसलिए उचित दूरी अगर बना के चलें तो वाहन में जाएं। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह यहाँ पर दी जाती है और मुठभेड़ से लौटकर 4 पहिया वाहन में आना जो है उसे चूक माना गया है कि वो चूक थी कि जब आप मुठभेड़ करके लौट रहे थे, आपको वहां पर सूचना मिली थी कि नक्सली हैं वहां पर और सर्च अभियान के बाद आपकी मुठभेड़ हुई थी, वहां से जब आप लौटे तो आपको 4 पहिया वाहन में न आना था, ये बात कही जा रही। अगर गाड़ी नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी शहादत ना होती, यानी कि अगर पगडंडियों से या पैदल चलकर ये जवान लौट रहे होते तो शायद इतनी बड़ी शहादत ना होती। ये बड़ा सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि जहां पर धमाका हुआ एक वो पक्की सड़क नजर आ रही है, तो कैसे एक पक्की सड़क के नीचे जो है उस विस्फोटक को छुपाया गया, इसको लेकर भी कई बातें जो है वो कही जा रही है। नई बनी पक्की सड़क के नीचे इतनी बड़ी बारूदी सुरंग पता कैसे नहीं चला, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। क्या प्रशासन के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि पता चल सके कि कहाँ कहाँ पर बारूदी सुरंग है, और जब इस तरह की गश्ती हो, इस तरह की पेट्रोलिंग हो, तो पहले से ही एक बार वहां पर पेट्रोलिंग कर ली जाए कि अगर उस सड़क पर कहीं पहले से ही तो सुरंग नहीं बिछी हुई है। यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक किसी बॉर्डर से ही आया होगा, ये सवाल भी उठ रहे हैं। तो क्या ये खुफिया तंत्र की विफलता नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। इन सड़कों पर सालों पहले बिछाई गई बारूदी सुरंगें भी है, यानी कि नक्सली बहुत पहले से इन इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं जो TCOC पीरियड होता है उसका खासतौर से नक्सली इस वक्त में, इस मौसम में इस्तेमाल करते हैं। उनका पता लगाकर विफल करना बहुत जरूरी है। जो पुरानी सुरंगें थी, ये बात यहाँ पर उठाई जा रही है। और कल की घटना में कई सफेद पोश भी शामिल हो सकते हैं। कई बार खदान में होने वाला विस्फोटक भी नक्सलियों तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि कई ठेकेदार भी नक्सलियों की मदद करते हैं क्योंकि वो दबाव में भी आते हैं, उनके साथ एक तरह का उनके ऊपर दबाव होता है, उन्हें धमकियां भी दी जाती हैं, तो कई बार ये भी सामने आता है। तो जिस जवान ने इस वीडियो को बनाया जहां पर ये हमला हो रहा है, उस वक्त की तस्वीरें वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। उस जवान से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं कि उस वक्त जब ये हमला हुआ तब क्या कुछ उन पे बीती, क्या कुछ उनको देखना पड़ा, क्या सामना उन्होंने किया। गाड़ी फायर स्टार्ट होने के बाद आई। फायर स्टार्ट तो टोटल कितनी गाड़ी थी पूरे काफिले में? काफिले में सामने एक पिकअप थी, हाँ हाँ, बाद मेरी स्कॉर्पियो थी, हाँ हाँ, तो होने के बाद तूफान जो फोर्स गाड़ी थी वो सामने आई, वो ब्लास्ट हुई उसके बाद। अच्छा, तो ये क्या आमा पंडुम के लिए वहाँ लड़के रोक रहे थे क्या, या आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आगे गाड़ी ब्लास्ट हो गया था? हाँ हाँ, आमा पंडुम के लिए रोका था उन लोगों को? हाँ, उससे पहले रोका गया था 100 मीटर। अच्छा, निकले उसके बाद फिर आगे जाके ब्लास्ट हुई गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोगों ने जब शेल्टर लिया तो फायरिंग किया, उसके बाद उधर 1-2 राउंड फायर आया नक्सलियों की तरफ से, फिर बंद हो गया? हाँ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद जो है इधर से ही मतलब चिल्लाना कौन है ऐसा करके। अच्छा, और आप लोग कितने दिनों से थे वहाँ पर ऑपरेशन में? हम लोग परसों से ही थे। परसों से ही थे, तो कल 11 बजे लौट रहे थे या 1 बजे के आसपास आप लोग लौट रहे थे वहाँ से? हम लोग 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास, तो 1:30 बजे के आसपास। तो वो तो बड़ा दर्दनाक वहाँ पर हुआ था जब पूरा ये हादसा हुआ वहाँ पर, तो उस टाइम कोई बचा था या कोई भी नहीं बच पाया? सीधे ब्लास्ट में सब उड़ गए आपके साथी? ब्लास्ट में ही सब हो गए थे, सब खत्म हो गए थे। जिनका जो पीछे बैठे थे शायद वो गेट के वो खुलने की वजह से टिका गए थे, वो भी बाद में उनकी भी डेथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आप लोग सब सुरक्षित है ना, और कोई घायल तो नहीं हुआ है ना? उसके बाद कोई हुआ नहीं। युवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए।
तो ये युवराज थे जो डीआरजी के जवान हैं और उस वक्त ये दूसरी गाड़ी में जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें सवार थे और उनकी आंखों के सामने ये कुछ हुआ है और उन्होंने वो वीडियो बनाया जो आपके सामने है। दंतेवाड़ा नक्सली हमले की लाइव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमले के बाद फायरिंग करते हुए भी यहाँ पर जवान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नक्सली हमले का जवाब देता दिख रहा है जो जवान जो है वो घायल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मौके पर मौजूद जवान जो है उन्होंने ही ये वीडियो शूट किया है। तो नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 10 शहीदों में से एक ऐसे भी जवान हैं जिनके शव के अंतिम संस्कार से उनके गांव वालों ने ही इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि नक्सलियों के दबाव की वजह से शव के अंतिम संस्कार को नहीं करने दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास तिवारी जो वहां पर पहुंचे जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और जान गंवाने वाले जवान के भाई से उन्होंने बातचीत की है। दंतेवाड़ा में कल एक जो बड़ी घटना हुई और माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में बहुत दिनों के बाद एक दूसरी बड़ी घटना है जिसमें बड़ी संख्या में जवानों ने अपनी शहादत दी। आज दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कार्ली में सभी जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान आप देखें तो सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लेकिन इसमें एक नई कहानी निकल कर आई है जो और भी ज़्यादा आपको विचलित कर देगी। दरअसल जो 10 जवान शहीद हुए हैं उसमें से एक जवान जिनके भाई के साथ हम खड़े हैं इस वक्त, इन्होंने बताया है कि जो जवान है उसके पार्थिव शरीर को गांव वाले गांव लाने से मना कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंगलू राम मंडावी सर। और आप भी डीआरजी में? जी जी डीआरजी में सर। तो ये आपके जो खत्म हुए भाई उनका क्या नाम था? वो दुर्गो मंडावी था सर। दुर्गो मंडावी जी, वो नव आरक्षक। जी नव आरक्षक। तो आप लोग आज बता रहे हैं कि यहीं पे अंतिम संस्कार करेंगे, गांव नहीं ले जाएंगे? सर मतलब सरपंच से बातचीत किए थे तो नहीं हो पाएगा, उधर ही करो। तो क्यों मना कर रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे कारण? तो नक्सली का थोड़ा दबाव होगा सर, नक्सली का। अच्छा, उनके दबाव। जी, वो जो खत्म हुए उनके पिताजी की भी हत्या माओवादी उनकी? जी जी किए थे सर। कब की घटना है, कैसे क्या क्यों किया था कुछ बताएं? तो हम मुझे नहीं पता था सर, लेकिन वो 2017 में उनके पिताजी को मारे थे। और नक्सली मारे थे? जी नक्सली। अच्छा जी। तो और ये कौन है जो आई हुई? उसका पत्नी है सर। पत्नी और बच्चा, एक ही बच्चे हैं उनके? जी एक ही बच्चा है। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि अब अंदर ले जाने से तो गांव वालों का समर्थन नहीं है क्या कि गांव का एक लड़का शहीद हो गया है, उसका अंतिम संस्कार अपने गांव में होना चाहिए? सर उन लोगों की मतलब यहाँ लाने नहीं देंगे बोल रहे थे। हाँ नक्सली लोग तो दबाव कारण। आपका गांव भी वही है? जी वही 3 किलोमीटर अंदर है। तो सुना आपने कि ये जो भाई है ये खुद भी डीआरजी जवान हैं और इनके भाई के अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों ने इजाजत नहीं दी। माना जा रहा है कि नक्सलियों का दबाव गांव वालों पर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दंतेवाड़ा पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी शहीदों को। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने। दंतेवाड़ा की जो घटना हुई है उसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि नक्सली कितने बैकफुट में हैं अभी? देखिए नक्सली तो बहुत पीछे हट चुके हैं। पहले और अब में अंतर ये है कि पहले कैंपों में हमला होता था और हमारे जवानों की शहादत हो जाती थी। अब हमारे जो जवान हैं सूचना का आधार पर जहाँ नक्सली होने की सूचना मिलती है वहाँ घेराबंदी करके हमला करते हैं और उस लड़ाई में शहादत होती है। ये भी जो घटना है इसमें जो सूचना मिली एसपी को, उस आधार पर हमारी डीआरजी के 2 टुकड़ी वहाँ गए अलग अलग सीमाओं से और घेरे। एक नक्सली घायल हुआ और एक को गिरफ्तार कर 2 नक्सली हमारे कब्जे में हैं और उससे लौट रहे थे, उस समय घटना घटी है। तो लड़ाई लड़ते हुए ये शहादत हुई है। पहले और अब में बड़ा अंतर है और इस तरह से नक्सली हिम्मत पस्त होते जा रहे हैं। नक्सलियों ने क्या कोई संदेश देने की कोशिश की? क्योंकि ये बात कही जाती रही कि नक्सली का जो क्षेत्र 60% कम हो गया है और अब इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देखिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब उसकी जो सीमा है वो सिमट गया है। जो जगरगुंडा का क्षेत्र है जो नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, अब जगरगुंडा जाने के लिए 3 रास्ते हो गए हैं। आप सुकमा की तरफ से जा सकते हैं दोरनापाल होते हुए, आप बीजापुर बासागुड़ा होते हुए जगरगुंडा जा सकते हैं और एरनपुर घाटी जहां अभी घटना घटी उस रास्ते पे जा सकते हैं। तो ये 3 तरफ से सड़कें बन चुकी है और लगभग 4 सालों में 75 कैंप बने हैं जो कोर एरिया में बना है और इस कारण से नक्सली अब सिमट गए हैं। उसको छुपने की जगह वो खोज रहे हैं। अब अगला छुपने की जगह वो कौन सी होगी ये स्थिति है, क्योंकि
जो हिडमा का जो हेडक्वार्टर है पुवर्ती, अब वो हमारे पहुंच के अंदर में आ गया, सीमा में आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हिडमा का हेडक्वार्टर है जो उनके कब्जे में आने वाला है और चारों तरफ से नक्सली घिर चुके हैं और ये नक्सलियों की बौखलाहट है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सवाल इंडिया का में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का आया विवादास्पद बयान। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की जहरीले सांप से। पूरी खबर ब्रेक के बाद। समलैंगिक विवाह को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। 121 पूर्व जजों, 101 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर यह चिट्ठी लिखी गई है। कानूनी वैधता प्रदान करने की कोशिशों से धक्का पहुंचा है, ये इस चिट्ठी में लिखा गया है और साथ ही लिखा गया है कि इसकी इजाजत दी गई तो देश को कीमत चुकानी होगी। हमारा समाज समलैंगिक संबंधों को स्वीकार नहीं करता। तो तमाम यहां पर जो 121 पूर्व जज हैं, 6 पूर्व राजदूत हैं समेत 101 पूर्व नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सीधे तौर पर इसका विरोध किया है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि विवाह की इजाजत देने पर यह आम हो जाएगा। इससे परिवार समाज नाम की संस्थाएं जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और एक बार फिर से यहां पर यही बात जाहिर की गई है कि इस बारे में कोई भी फैसला जो है वो संसद को ही उसका अधिकार हो किसी भी तरह का फैसला लेने का। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक बड़ी बात यहां पर आई है क्योंकि हमने देखा था केंद्र सरकार ने अपना रुख जाहिर किया था, कुछ और संस्थाएं भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर चुकी हैं इसके विरोध में। बार काउंसिल आई और अब उसके बाद यहां पर पूर्व जज जो हैं वो सामने आए हैं, पूर्व नौकरशाह जो हैं वो भी सामने आ गए। बिल्कुल, जो एक तरफ लगातार संविधान पीठ की सुनवाई चल रही है, दूसरी ओर कई संस्थाओं की ओर से इस पर हस्तक्षेप भी लगातार जारी है। जिस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पत्र लिखा गया, उसके बाद जवाब में 600 स्कूली बच्चों ने पत्र लिखकर कहा कि ये जो विवाह है इसको मान्यता दी जानी चाहिए। और अब 100 से भी अधिक जो है पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह, इन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रपति को। उन्होंने पूरे इस मामले के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके बहुत व्यापक परिणाम भारतीय समाज के ऊपर होंगे। उनका यह कहना है कि विवाह जो है वो और समाज के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि मूलभूत संस्थान है। अगर इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप होता है, छेड़खानी होता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों पर भी इसके ऊपर जो है भावनात्मक रूप से भी, स्वास्थ्य के तौर पर भी इसके कई जो है दुष्परिणाम होंगे। इन सब के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है कि इसमें जहां तक विवाह की बात है, हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि विवाह को कानूनी मान्यता देने का प्रश्न हो या अन्य बातें हो, उस सब का अधिकार विधायिका को है। संसद की बात उन्होंने कही है कि संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता की राय को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता की राय को रखते हैं और इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को संसद के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। जी अखिलेश, यहाँ पर संविधान पीठ अपनी सुनवाई कर रहा है, वो सब कुछ, वो प्रक्रिया जो अपनी जगह एक अलग चल रही है, लेकिन जब इस तरह की चिट्ठी राष्ट्रपति को जाती है तो वो किस तरह का असर समाज पर डालती है? क्या इसके पीछे मकसद क्या कुछ होता है? देखिए, इसके पीछे मकसद यही है कि देश भर में एक व्यापक बहस चलाई जाए क्योंकि ये जो परिणाम इसके होंगे उनके मुताबिक काफ़ी गहरे होंगे और समाज पर इसका असर पड़ेगा। इनका यह भी दावा है कि समाज इससे मूलभूत रूप से बदल जाएगा। आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो पूरी तरह से इसके लिए प्रभावित होंगी और इसलिए इस पर एक व्यापक बहस की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में बातें होती हैं उसमें जो एक बाहर जो बहस चल रही होती है उसका भी एक रिफ्लेक्शन देखने को आता है। जब वकील अपनी बहस करते हैं, सरकार की ओर से दलील दी जाती है, तो निश्चित तौर पर उसमें एक बात, उसमें जो है फैक्टर जो आप कह सकते हैं कि बनता है उस पूरी डिबेट के अंदर। और इसीलिए यह है कि एक तरफ कोर्ट रूम में जहां इस बात पर बहस चल रही है, दूसरी तरफ समाज में और व्यापक देश में भी इस पर एक चर्चा शुरू हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पूर्व नौकरशाह, पूर्व जज हैं जो हैं वो समलैंगिक विवाह के विरोध में आए हैं, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और सीधे तौर पर ये कहा है इसमें कि इसका अधिकार जो है वो सिर्फ संसद को ही होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर और दुखद खबर राजस्थान के कोटा से सामने आई है। एक और खुदकुशी का मामला यहाँ पर आया है। मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। एक के बाद एक लगातार छात्रों की खुदकुशी के मामले यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह से ये केस बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहे हैं। कोटा में अगर इस साल की बात करें तो खुदकुशी का ये 7वां केस है और आप समझ सकते हैं कि ये अप्रैल का महीना है। 4 महीनों में 7 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। 2022 की अगर बात करें तो IIT नीट की तैयारी कर रहे 17 छात्रों ने खुदकुशी की थी।
दिसंबर 2022 में एक ही दिन में 3 छात्रों ने अपनी जान दे दी थी। तो यहाँ पर अधिकारियों के मुताबिक कोविड के बाद कोटा में खुदकुशी के मामलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर कम उम्र के ये छात्र छात्राएं हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं, अपने परिवारों से दूर होते हैं और ऐसे में जो पढ़ाई का दबाव है वो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रहा है। हम सीधे चल रहे हैं हर्षा कुमारी सिंह, हमारी वरिष्ठ सहयोगी के पास, जो लगातार इस मामले को कवर कर रही हैं। कोटा भी, हर्षा आप कोटा भी गई थी, वहां से भी आपने रिपोर्ट किया था इस पूरे मामले को, हर पहलू को इसके आप सामने लेकर आई थी। लेकिन हर्षा, ये वाकई में चिंता पैदा कर रहा है और अब इस पे कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि छात्रों की काउंसलिंग हो और कम से कम आत्महत्याओं के मामले और ना बढ़े। देखिए, जो कोटा का जो माहौल है उसको सुधारना एक तरह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर आप देखेंगे तो करीब 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कोचिंग क्लासेस में दाखिला लेते हैं और छोटे छोटे शहरों से आते हैं, देश से अलग अलग जगह से आते हैं। वो हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट में रहते हैं। वहाँ पर उनको घर जैसा वातावरण नहीं मिलता है, वहाँ पर सिर्फ उनसे रेंट लेकर उनको कमरा दिया जाता है। दूसरी बात जो है वो पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर आप 1 या 2 दिन भी पीछे रह जाते हैं पढ़ाई में तो आपको मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे राशि के केस में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बीमारी हुई, छोटी सी बीमारी हुई और वो टेंशन में आ गई कि मैं स्लिप कैसे कर जाऊंगी इसमें से। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा सो गए या क्लास मिस कर गए तो फिर हम उसमें कैसे कोप कर पाएंगे। साथ ही IIT में करीब 20,000 तक सीटें हैं। बच्चे जो देते हैं एग्जाम 1.5-2 लाख के करीब बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन सिर्फ कोटा की ही बात नहीं है, IIT में दाखिला लेने के बाद भी, IIT IIMs में भी जब दाखिला हो जाता है तब भी सुसाइड के केस सामने आते हैं। तो जो मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं यंग एडल्ट्स में, टीनेजर्स में, इनको शायद परिवारों को और समाज को गौर से देखना पड़ेगा। कोचिंग की तरफ से फ्री डेज हैं, हॉलीडेज हैं, नो स्टडी डे है, फेट फेस्टिवल फेयर्स है। प्रशासन ने एक बिल भी ला रही है राजस्थान सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलराइज करने के लिए। लेकिन आप जब तक मेंटली जो बच्चे के दिमाग में जो टेंशन चल रहा है उसको वहां पर आप मूल जो जड़ की बात है, जो मूल प्रॉब्लम है, उस पर आप जब तक नहीं पहुंचेंगे तब आप कितने ही बिल और कितने ही लेजिस्लेशन ले आए, ये मामला सुलझने वाला नहीं है। आपने खुद ने बताया आंकड़े कितने हो रहे हैं सुसाइड्स, और कोविड के बाद तो इसमें बढ़ोतरी हम देख रहे हैं कि करीब 60% बढ़ोतरी हुई है। तो हमारे देश में जो पहलवान हैं उनका धरना लगातार जारी है। ये उत्पीड़न का आरोप उन लोगों ने लगाया और इस सब पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है PT उषा, उनकी पहली प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि खिलाड़ियों को सीधे सड़कों पर विरोध के लिए नहीं उतरना था, सीधे उन्हें प्रोटेस्ट के लिए नहीं जाना चाहिए था, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। ये PT उषा की तरफ से कहा गया है। ये खेल और भारत के लिए सही नहीं है, ये यहाँ पर PT उषा की तरफ से कहा गया है, जो ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन जुड़ गए हैं। विमल मोहन, ये बहुत बड़ी बात है जो PT उषा कह रही हैं। सीधे तौर पर खिलाड़ियों का जो विरोध प्रदर्शन, जो धरना चल रहा है, उससे वो नाखुश नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जो पूरी कमेटी बैठी थी करीब 4-साढ़े 4 घंटे ये बैठक चली। अभी 12 बजे से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का ये जो भवन है यहीं पे, और उन्होंने जो बाहर आया एक तरह से लगभग गुस्से में थी कि वो उन्होंने कहा भी कि नाराज हैं वो लोग कि इस तरीके से आप स्ट्रीट पर नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ पे एथिक्स कमेटी है, आपको यहाँ आना चाहिए था और अपनी बात कहनी चाहिए थी। और जाहिर तौर पर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कल्याण चौबे, उनकी भी यही तीखी प्रतिक्रिया थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो WFI है उसके इलेक्शन के लिए सुमा शिरूर, बाजवा और एक रिटायर्ड कोर्ट जो हाई कोर्ट का जज है उसकी हमने कमेटी बनाई है, वो इलेक्शंस करेंगे। इनका कहना था कि एक्शंस ले रहे हैं और सेंसिटिव इशू है, इस पे अचानक फैसला नहीं दिया जा सकता है। आपने अगर हम जांच करवाई है तो आपको हमारे पास आना चाहिए था, आपने अभी तक एक बार भी अप्रोच नहीं किया। लेकिन अगर रेस्लर्स की बात करें, उनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कहा था कि कई सारी बातें लीक हो रही हैं, अखबारों में आ रही हैं। एक जो ओवरसाइट कमेटी थी उसकी जो लेकर रेसलर्स नाराज थे और अब वो जंतर मंतर पर धरना देना है, इसकी प्रतिक्रिया जरूर अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगी। लेकिन फिलहाल
भारतीय ओलंपिक संघ जो है, कल कोर्ट का इसका फैसला होना है, कोर्ट में ये बात जानी है, उससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ ने इन खिलाड़ियों को लेकर अपनी नाराजगी, अनुशासनहीनता, स्ट्रीट पर जाने, गेम्स के इमेज को खराब करने, या जो एशियन गेम्स आने वाला उससे पहले इस तरह की बात पूरी दुनिया में इंडियन स्पोर्ट को लेकर जो इमेज जारी है उस पर अपनी बातें जाहिर की हैं। बिल्कुल विमल, ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि खिलाड़ी यहां पर इस बात को भी उठा रहे थे कि उनकी शिकायत के बावजूद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। लेकिन यहां पर पीटी उषा का कहना है कि उन्हें कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। ये खेल और भारत के लिए सही नहीं है और ये नकारात्मक तरीका है। शुक्रिया विमल मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। तो पहलवान लगातार मांग कर रहे हैं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई करने की, और आज बृजभूषण शरण भी सामने आए मीडिया की और कविता के जरिए खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। तो ये आपने सुना बृजभूषण सिंह को यहाँ पर, और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी जब कल दिल्ली पुलिस अपना हलफनामा दाखिल करके इस मुद्दे पर तस्वीर को और साफ करेगी। तो फिलहाल सवाल इंडिया का में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।